are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 8 of your class 3 EVS, that is we need water and air. Of course, absolutely, we need water and air on earth to live. Without air and water, the life is not at all possible to live on the earth. The water is very precious for us. We should not waste water. So to live a life on earth it is very essential to have air on it, because which we get from the oxygen. So let's read the chapter. First, enjoy the poem. There is no color in the rain. The rain do not have any color. It only water, wet and plain. It's only water. एक water है, wet है और plain है एकदम. It makes damp spots upon my book. वो कैसे spots बना दी थी आपके book पे? Damp spots. And splashes on my new dress. And splashes on my new dress. Look. But puddles in the rainy weather. किस टाइम होती है rain? It puddles only in the rainy weather. Glisten like a peacock's feather. Glisten मतलब चमकती एकदम peacock's feather की तरह. It's given by René Cloak. The poem is given by René Cloak. Now let's read the chapter of what is water. Water क्या होता है? A living thing needs water to live. A living things need water. हर living thing को water चाहिए to drink, to digest food. There can be no life without water. There can be कोई life ही नहीं possible नहीं है अर्थ पे without water. Uses of water. Now here are some uses of water. We need water for drinking. हमें water चाहिए किस लिए? We need water for drinking. पीने के लिए चाहिए, cooking के लिए चाहिए, bathing के लिए चाहिए, washing and cleaning के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए भी चाहिए, नहाने के लिए भी चाहिए, washing कपड़े धोने के लिए भी चाहिए, utensils wash करने के लिए भी चाहिए और सफाई करने के लिए भी चाहिए. Water helps to digest the food we eat. Water किस में help करता है हमें? जो हम खाना खाते हैं उसको digest करने में. Farmers need water to grow crops. Farmers को किस लिए चाहिए water? कई बार rain कहते हैं ना, rain आ जाए, किस लिए चाहिए होता है? To grow crops. Plants need water to grow. Plants को किस लिए water चाहिए? Grow करने के लिए. जैसे हमें food चाहिए, water चाहिए, हमें भी चाहिए. Likely the plants also need water. Some plants need to be watered every day. कुछ plants ऐसे होते हैं उनको रोज water चाहिए होता है, कुछ को कभी-कभी चाहिए होता है. Plants need water to make their food. Plants को किस लिए चाहिए होता है water? अपना खाना prepare, अपना food बनाने के लिए. Water also helps the plants to absorb food and from the soil. Water किस में help करता है? Plants को food absorb करने में soil से. Animals need water to drink and bath. Animals को भी water चाहिए to drink and for bath. For fish and other water animals live in ponds, rivers and seas. कुछ animals ऐसे होते हैं water के अंदर ही रहते हैं, like crocodile, fish, whales. कहाँ रहते हैं? Rivers में रहते हैं, seas में रहते हैं, ponds में रहते हैं. Water is used to make electricity. आपको पता है electricity किस चीज से बनती है? It is made from the water. Now next page. The electricity made from water is called hydroelectricity. जो electricity water से बनती है उसको क्या कहते हैं? Hydroelectricity कहते हैं. Water is medium of transport. Ships and boats move on water. Water is also the medium of transport. There are many mediums of transport: land transportation, water transportation, air transportation. वाटर ट्रांसपोर्टेशन जब तो पॉसिबल है जब हम वाटर पे मूव करेंगे, तो वाटर भी तो होना चाहिए शिप्स वगैरह बोट्स को मूव करने के लिए. नाउ सम सोर्सेज ऑफ वाटर. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. वाटर किसको कवर करता है? अर्थ की 3/4 सरफेस पे वाटर ही वाटर है. इट इज फाउंड इन ponds, lakes, rivers, seas and oceans. कहाँ पे मिलता है? ponds में मिलता है, तालाब में, rivers में, नदियों में, seas में और oceans में, lakes में भी. Have you ever wondered from where we get water? कभी आपने देखा है कि हमें water कहाँ से मिलता है? Let's read. Rain is the important source of water. रेन से ही हमें वाटर मिलता है, बिकॉज रेन होगी तो जो हमारे रिवर्स, ओशियन, सीज, लेक्स है, ये पॉन्ड सब फिल हो जाता है दोबारा से. और रेन कैसे होती है? जो हमारी वेपराइजेशन होती है, इवेपोरेशन होती है, उसके थ्रू क्लाउड्स में रेन की ड्रॉप्स भर जाती है, वो हैवी हैवी फील होती है. देन इट बर्स्ट
then the rain droplets comes down to the earth's surface. When the snow melts in summer, water rushes down from the mountains to form river. जब स्नो जो माउंटेन्स पे स्नो होती है समर्स में वो मेल्ट हो जाती है, जो उनका वाटर होता है वो नीचे आता है बह बह के, वो रश होता है एकदम, वो रिवर्स फॉर्म करता है. सम वाटर गोज फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड थ्रू हैंड पंप्स. कुछ वाटर कहाँ से आता है, उसमें से आता है वेल्स में, ट्यूबवेल्स से एंड हैंड पंप से. तो ये जो वाटर ये वाटर कौन सा होता है, दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. वो कैसे होता है, जो हमारी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, जो उसमें सॉइल में वाटर चला जाता है, इट कम्स थ्रू द हैंड पंप्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, तो उसको कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर. Waste from houses and factories is thrown into the water bodies. This pollutes the water. जो वेस्ट होता है हाउसेस का, रिवर्स उसका, इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज का, कई बार आप लोग उसमें रिवर्स में थ्रो कर देते हो, तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, वाटर सारा बेकार गंदा हो जाता है. वी शुड नॉट थ्रो आवर वेस्ट इन द रिवर्स. नाउ वाटर पॉल्यूशन. Do you know, as I told you, the one point of the water pollution, then we will read again. Do you know that only 10% of the total water on earth is fit for drinking? आपको पता है जो 3/4 पानी है आपका, उसमें से खाली आपका 10% ही वाटर है जो आप फिट है एकदम ड्रिंकिंग के लिए, जो आप पी सकते हो. This is because water in seas and ocean is too much salty to drink. जो वाटर होता है सीज और ओशियंस में हमारे, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, वो दैट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रिंक. वाटर ऑन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर इज पॉल्यूटेड ड्यू टू वाटर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज. वाटर जो होता है पॉन्ड्स में होता है, लेक्स में होता है, रिवर्स में, वो पॉल्यूट हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेरियस एक्टिविटीज से उसमें वेस्ट जाता है, लाइक इंडस्ट्रीज से जाता है, आप कुछ फेंक के आते हो रिवर्स में, कई बार जो फैक्ट्रीज से वेस्ट जाता है, वो बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन कर देता है. सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट पॉइंट, पीपल वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड बाथ इन द पॉन्ड्स. पीपल क्या करते हैं, अपने यूटेंसिल्स वॉश करते हैं पॉन्ड्स में, उसमें नहाते हैं, अपने क्लोथ्स वॉश करते हैं, विच पॉल्यूट्स द वाटर. लेक्स एंड रिवर्स, दे ऑल्सो बाथ देयर एनिमल्स. वो अपने एनिमल्स को भी वहाँ पॉन्ड्स में, रिवर्स में बाथ कराते हैं. ऑल दिस मेक्स द वाटर डर्टी. वो क्या करता है, सारे वाटर को डर्टी कर देता है. Now, clean water. What do you mean by clean water? The water we drink must be clean. जो water हम पीते हैं, it should be clean. हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी harmful diseases हो जाती हैं. Drinking dirty water can cause diseases like typhoid and jaundice. अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी diseases हो जाती है, जैसे कि टाइफाइड, jaundice. The water we get in our houses is cleaned by the city water works. जो हमारे घरों में पाइपलाइंस के थ्रू वाटर आता है, वो कैसे होता है, क्लीन होता है. इट इज क्लीन बाय द सिटी. हमारी सिटी की जो वाटर वर्क्स होता है, वाटर आपका पहले क्लीन होने के बाद आता है. इट इज देन सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू द पाइप्स. वो आपके होम्स में कैसे सप्लाई होता है, थ्रू द पाइपलाइंस. नाउ नेक्स्ट पेज. एट होम वी कैन प्योरीफाई वाटर. हम अपने घर पे वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं, लेट्स रीड दैट. बॉइलिंग इट किल्स मोस्ट ऑफ द जर्म्स इन वाटर. अगर हम अपने वाटर को बॉईल कर लेंगे अच्छे से, तो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं. एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स. उसमें अगर हम क्लोरीन होता है, केमिकल होता है, वो टैबलेट्स उसके अंदर डाल देंगे तो उससे भी वाटर क्लीन हो जाता है. बाय फिल्टरिंग इट. अगर हमारे घर पे फिल्टर्स हैं, तो अगर हम फिल्टर से क्लीन कर देते हैं तो भी हमारा वाटर क्लीन हो जाता है, दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. नाउ वी शुड ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ क्लीन ग्लास. हमें वाटर को हमेशा क्लीन ग्लास से पीना चाहिए. वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन बॉटल्स और ड्रम्स. हमें अपनी वाटर को क्लीन वाटर बॉटल्स में स्टोर करना चाहिए, क्लीन ड्रम्स में स्टोर करके रखना चाहिए, गंदों में नहीं, क्योंकि उसमें जर्म्स आ जाएंगे फिर. We should keep the water covered to prevent dust and germs from the settling on it. हमें अपने वाटर को कवर्ड करके रखना चाहिए, जो डस्ट है, जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उसमें एंटर ना करे, इस वजह से. We should not put our heads into the drinking water. हमें जो हमारा पीने वाला पानी, उसमें हमें अपने हैंड्स नहीं डालने चाहिए बिल्कुल भी, जो हमारे, बिकॉज हमारे हैंड्स में जर्म्स भी होता है समटाइम. हमें उससे अपने पॉल्यूट नहीं करना चाहिए अपने ड्रिंकिंग वाटर को. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयर.
till here we talked about water, how water is useful to us. Now we will talk about air, how air is useful to us. We breathe in oxygen and we takes out carbon dioxide. हमें क्या लेना होता है, हमें क्या इनहेल करना होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और हम एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड बाय द प्लांट्स एंड ट्रीज. और ऑक्सीजन कौन देता है हमें, ऑक्सीजन इज गिवन बाय द, कौन देता है, इट इज गिवन बाय द ट्रीज एंड प्लांट्स. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सबको एयर चाहिए, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो. You have read earlier that a thick layer of air surrounds the earth. आपने पहले पढ़ा है ना, जो थिक लेयर होती है एयर की वो अर्थ के चारों तरफ होती है. दिस लेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. उस लेयर को क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेयर. द एयर विच lays thick around the earth, it is called atmosphere. Air contains many gases like oxygen and carbon dioxide. एयर में क्या होती है, कुछ गैसेस होते हैं लाइक एयर भी, ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है. और कार्बन डाइऑक्साइड आती है जो हम एक्सहेल करते हैं, उससे वो प्लांट्स इनहेल कर लेते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर. उसमें क्या होता है, वाटर वेपर, मॉइस्चर भी होता है. कई बार देखा होगा आपने, एयर में मॉइस्चर होता है ना, वाटर वेपर होता है. इट इज ऑल अराउंड अस. वो एयर क्या है, हमारे चारों तरफ, यहाँ भी एयर है वहां भी एयर है, चारों तरफ हमारे एयर है, बट हम उसे पकड़ के नहीं रख सकते. वी कैन नॉट होल्ड द एयर. नाउ नेक्स्ट पेज. वी कैन नॉट होल्ड, सी, स्मेल और टेस्ट एयर. हम अपने एयर को देख भी नहीं सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते और टेस्ट तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते. Yet we can feel it, but उसे हम, जैसे आपकी हवा चल रही है तो you can feel the air ना, कि इस स्पीड से हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, you can feel the air. Stand beneath a running fan or in front of a cooler. Can you feel the cool air? कभी आप फैन के या अपने कूलर के आगे खड़े होकर देखना, आपको एयर आएगी, क्या आप उस ठंडी हवा को फील कर सकते हैं? Of course you can. In winter we can feel the cold air around us. जो हम विंटर्स में अपने चारों तरफ एक कोल्ड एयर को फील करते हैं. During summers the air becomes warm. समर्स में क्या होता है, वो एयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. Even though we cannot see air, we know it filled with objects like balls, balloons and tires. हम एयर को बिल्कुल भी देख नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते, बट वी कैन फिल द एयर इन बॉल्स, टायर्स एंड बलून्स. इनके अंदर हम फिल करके रख सकते हैं. एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन किस किस चीज से होता है? स्मोकिंग, व्हीकल से एयर पॉल्यूशन होता है. वी शुड नॉट स्मोक इन द एयर, वी शुड नॉट डू स्मोकिंग. एयर दैट इज नॉट क्लीन इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर. जो एयर क्लीन नहीं होती, गंदी होती है, जिसमें जर्म्स होता है, उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेड एयर. जो क्रैकर्स से होता है ड्यूरिंग दिवाली, बिकॉज ऑफ व्हीकल्स ऑल्सो कहते हैं ना, एयर पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा. इट कॉजेज डिजीजेस लाइक अस्थमा एंड ट्यूबरक्लोसिस. एयर पॉल्यूशन से हमें कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं? जैसे कि हमें हो सकती है अस्थमा एंड ट्यूबरक्लोसिस. जैसे वाटर पॉल्यूशन से टाइफाइड एंड जॉन्डिस हो सकता है, ऐसे इससे ट्यूबरक्लोसिस एंड अस्थमा हो सकता है. पॉल्यूटेड एयर इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ईदर. पॉल्यूटेड एयर जो होती है वो बिल्कुल भी हमारे लिए भी अच्छी नहीं और प्लांट्स के लिए भी अच्छी नहीं होती. प्लांट्स कई बार सूख जाते हैं उससे और हम बीमार पड़ जाते हैं. एयर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू मेनी फैक्टर्स. एयर कैसे कैसे पॉल्यूटेड होती है? नाउ लेट्स वी विल रीड अबाउट दैट कि एयर में कैसे कैसे पॉल्यूशन एंटर करता है. फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग वुड एंड गार्बेज एंड बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स कॉज एयर पॉल्यूशन. ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज होती है, बर्निंग वुड, जैसे आप आग जलाते हो, फायर क्रैकर्स जलाते हो, या फिर कब उसको फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हो, या गार्बेज को अपनी बंद कर देते हो, प्लास्टिक्स बंद कर देते हो, तो उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है बहुत ज्यादा. नाउ ग्रीन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स पॉल्यूट्स द एयर. जो फायर क्रैकर्स जो होते हैं बर्स्ट होते हैं, आप दिवाली के टाइम जो फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हो, अपनी वेडिंग्स के टाइम करते हो, उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है. इट किल्स द मेनी स्मॉल इंसेक्ट्स टू. वो क्या करता है? स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं, जैसे बीज वगैरह होते हैं, उनसे वो भी मर जाती हैं. Say no to crackers. We should say no to crackers. We should not burst firecrackers at all.
The smoke given out by factories and vehicles mixes with the air and makes it impure. जो स्मोक आता है उससे फैक्ट्रीज से और इंडस्ट्रीज से क्या होता है, उससे स्मोक जो होता है वो एंटर करता है एयर में, वो एयर को पॉल्यूट कर देता है, इम्प्योर कर देता है. डंपिंग गार्बेज आउट इन द ओपन पॉल्यूट्स द एयर. जो आप खुले में अपना गार्बेज को फेंक देते हो ना, उससे भी स्मेल आती है. आपने देखा होगा एयर पॉल्यूशन उससे भी होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लीन एयर. क्लीन एयर क्या होती है? फ्रेश एंड क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी. जो फ्रेश और क्लीन एयर होती है वो हमें एकदम फिट और हेल्दी रखती है. Here are some ways in we can get clean air. यहाँ पे कुछ ways है जिससे हमें clean air मिल सकती है. Let's read them. Plants keep the air fresh and clean. जो plants होते हैं वो air को clean और fresh रखते हैं because वो oxygen देते हैं all around us. So we should grow more plants. हमें ज़्यादा से ज़्यादा plants grow करनी चाहिए जिससे air pollution बिल्कुल खत्म हो जाता है. Always use a handkerchief when coughing or sneezing. जो जब आपको कफ हो रहा होगा, when you sneeze you should always use the handkerchief. This will क्या करेगा ये? This will prevent the germs from spreading in the air. जो आप sneezing और coughing के टाइम अगर आप handkerchief को यूज करोगे तो वो जो आपके germs एयर में फैलेंगे उसको प्रिवेंट करेगा. Throw garbage into a covered dustbin. We should throw the garbage in the covered dustbin. एकदम covered dustbin में हमें अपना garbage throw करना चाहिए, open air में बिल्कुल नहीं करना चाहिए. Use a bicycle or to walk to nearby places. हमें जो आसपास के एरियाज में होते हैं बाइसिकल का यूज करना चाहिए because it is pollution free. या फिर हमें पैदल वॉक करके जाना चाहिए. For traveling long distances, form a carpool or use public transport. हमें या तो कारपूल मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग जा सकते हैं एक ही प्लेस पे, कि उनको ये नहीं कि आप सिंगल जा रहे हो कि उसमें खाली आप ही बैठे हो. ऐसा नहीं करना चाहिए. उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है. डू नॉट बर्न वुड गार्बेज और मटेरियल्स दैट हैव रिलीज स्मोक. हमें गार्बेज बर्न नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसे मटेरियल्स बिल्कुल बर्न नहीं करने चाहिए जैसे प्लास्टिक जो स्मोक रिलीज करते हैं. रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू गेट देयर कार और स्कूटर्स चेक रेगुलरली. आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करो कि अपने स्कूटर्स को और कार्स को रेगुलरली पॉल्यूशन चेक करवाएं जिससे एयर पॉल्यूशन ना हो. लेट अस ऑल जॉइन द हैंड्स टू कीप द एयर क्लीन. वी शुड जॉइन द हैंड्स टू कीप द एयर क्लीन because without air we cannot live on earth. We should clean our air. Now that's all for this chapter. I hope you all like the explanation of this chapter. Thank you and have a nice day.